Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Second year chemistry, chapter number 16, हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट लेक्चर. चैप्टर नंबर 15 हम पढ़ चुके हैं. चैप्टर नंबर 16 में सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करते हैं. इस टॉपिक में बहुत सारे एमसीक्यूज हमारे इंशाल्लाह क्लियर होंगे. एनएमडीकेट के हवाले से भी बात करेंगे, ईटा और ईकेट के हवाले से भी इस टॉपिक से जो एमसीक्यूज आते हैं वो डिस्कस होंगे. बहुत सारे लोग केमिस्ट्री को बहुत मुश्किल सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हम इसको फुल कंसंट्रेशन से पढ़ें तो केमिस्ट्री इंतहाई आसान सब्जेक्ट है और इसको इंशाल्लाह आसान बनाएंगे आपके लिए. सो बेटा पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन. व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? एज द नेम इंडिकेट, हाइड्रो एंड कार्बन. It is the combination of two words, hydrogen and carbon. Compounds of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. Hydrocarbons के मेन सोर्सेस क्या है? सोर्सेस हम हाइड्रोकार्बन पढ़ लेते हैं, डिफाइन भी कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं, हमें इनके मेन सोर्सेस का नहीं पता होता. तो व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन? सो हाइड्रोकार्बन के जो मेन सोर्सेज हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉसिल रिमेन. प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, लेकिन जो हम मेन सोर्स यूज करते हैं दीज आर petroleum, fossil remain, fossil fuel. What is fossil? Anything that is obtained by anaerobic decomposition of remains of plant and animal. Are known as fossil fuel. What is fuel? Fuel किस चीज को कहते हैं? Anything that burns and supply energy. Anything that burns and supply energy is known as fuel. बेटा एमसीक्यूज आता है एनएमडीकेट में या ईटा में के व्हाट इज फ्यूल ऑफ लाइफ? फ्यूल ऑफ लाइफ. Second year chemistry, chapter 24, carbohydrates. Second year chemistry, chapter number 24 में टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स. उसका फर्स्ट लाइन है carbohydrates is known as fuel of life. कैसे? ग्लूकोज हमारे बॉडी में बर्न होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान. इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Along with this, it releases some energy. That energy is used in various metabolic activity. That is why carbohydrates are known as fuel of
life because it is the substance that provide energy to the organisms. इस वजह से इसको फ्यूल ऑफ लाइफ कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने एक एग्जांपल दे दिया है आपको। नाउ these substances are also, this mixtures are also known as fuel because petroleum, coal and natural gas provide energy upon combustion. इस वजह से इनको भी हम क्या कहते हैं? इस वजह से इनको भी हम फ्यूल कहते हैं। अब ये हम वेरियस पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम इज मेनली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ more than 40 different hydrocarbons, and these are mainly aliphatic hydrocarbons. वर्ड एलिफेटिक आगे एक्सप्लेन हो रहा है। अनदर वन इज नोन एज कोल। कोल सॉलिड फ्रैक्शन है, ये लिक्विड है, कोल सॉलिड है, सॉलिड फ्रैक्शन है, और इससे हम मेनली क्या हासिल करते हैं? इट इज मेनली यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ 200 aromatic compound. Natural gas, this is mainly used for the extraction of methane, ethane, propane and butane. Natural gas is known as mixture of low boiling hydrocarbons. Because these all are known as gases, that's why it is known as low boiling hydrocarbons. My dear students, now what are the usefulness of these hydrocarbons? These are mainly used in the, as I mentioned earlier, these are mainly used for extraction of aromatics. Aroma, which is a pleasant smell, and these substances are mainly used in cosmetics, perfumes, soap, etc. Another usefulness of these substances is they are used in power production, power generation. Mean with the help of coal, petroleum and natural gas we can run the vehicle, we can run industry, turbines, इलेक्ट्रिक करंट के पैदा करने के लिए हम ज्यादातर यही हाइड्रोकार्बन्स यूज करते हैं। These are mainly used for the preparation of synthetic petroleum. Synthetic mean artificial petroleum. आर्टिफिशियल पेट्रोलियम के लिए क्या यूज किया जाता है? आर्टिफिशियल पेट्रोलियम के हम
मेनली यूज करते हैं कोल बाय FT प्रोसेस। चैप्टर 15 में ये डिस्कस हो चुका है। इसके अलावा these are also used in aromatics, power production, synthetic petroleum, and these are used in the manufacturing of various valuable products like tires. Yeah, these are also used for the preparation of polymers like polythene, PVC, polyvinyl chloride etc. इसके अलावा इसके भी बेतहाशा यूजेस हैं। These are used for the variety of organic compounds. Now we are going towards the types of hydrocarbons. So we have two types of hydrocarbons. One is aliphatic while another is aromatics. Aliphatic and aromatics. These are the two main types of hydrocarbons. एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किस चीज को कहते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस चीज को कहते हैं। मैं हाइड्रोकार्बन की यहां आपको इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में बता दिया, इसके बाद इनका मैंने मेन सोर्सेज बता दिए, फिर इसके यूजफुलनेस पे बात हुई है। इसके यूजफुलनेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैंने आपको सीधा सीधा लिखवाए हैं ये हमारे बुक में मेंशन है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।